મંચ પર બિરાજમાન ભારતીય જનતા પાર્ટીના સર્વે આગેવાનો અને બહુચરાજી જેવા એક નાનકડી પંચાયત જેવા ગામમાં આ વિશાળ સંખ્યામાં પધારેલા નાગરિક ભાઈઓ અને બહેનો, આજે બહુચરાજીની પવિત્ર ભૂમિથી વિવેકાનંદ યુવા વિકાસ યાત્રાનો આરંભ થઈ રહ્યો છે. ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન ઉઠતો હશે કે ચૂંટણી સામે ઊભી છે, કોંગ્રેસ 12 મહિનાથી ઉઠ બેઠક કર્યા કરે છે, પણ આ મોદી સાહેબના પેટનું પાણી કેમ નથી હાલતું? ઠંડે કલેજે બેઠા છે કેમ? અને એમાંય જ્યારે મેં યાત્રા નક્કી કર્યો, તમારા જવાન મિત્રો મને પૂછવા લાગ્યા કે નરેન્દ્રભાઈ, હવે તો ચૂંટણી સામે આવી અને હજુ તમે આ વિવેકાનંદ ને વિકાસ ને યુવક ને આ જ બધું કરવાનું છે કે કઈ ચૂંટણીનો રણશંકર કરવાનો છે? ભાઈઓ બહેનો, કોઈને પણ આ વિચાર આવે, પણ મને એમ લાગે છે મારે ચૂંટણી જીતવા માટે ગુજરાતની જનતાને અલગથી કોઈ અપીલ કરવાની આવશ્યકતા મને લાગતી નથી. ગયા 10 વર્ષનો અમારો રેકોર્ડ બોલે છે. ખુલ્લી કિતાબ જેવી આ સરકારનો વહીવટ બોલે છે. પ્રજાના કલ્યાણ માટે કરેલા પરિશ્રમની ગાથા બોલે છે. ચારે તરફ સુકર્મની સુવાસ ફેલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને હવે તો કોઈના મનમાં દુવિધા રહેવાનું કારણ જ નથી. પહેલા હું દેશને કહેતો હતો કે અમારા ગુજરાતમાં ગામડામાં પણ જ્યોતિગ્રામ યોજનાને કારણે 24 કલાક વીજળી મળે છે. અમારે ત્યાં કોઈ પાવર કટ હોતો નથી. અમારે ત્યાં માં માંદી હોય ને પંખો ચલાવવાનો હોય તો ચાલે છે. અમારે ત્યાં ઘરમાં નવી બહુ આવી હોય ને એને સાથ બી કહું બહુથી સિરિયલ જોવી હોય તો ટીવી ચાલે છે. તો લોકો મને કહેતા હતા, હે એવું હોતું હશે? વીજળી ચાલે છે તમારે ત્યાં? પણ જ્યારે આ દિલ્હી સરકારના કારનામાને કારણે આખો હિન્દુસ્તાન અંધારમાં ડૂબી ગયો, 19 રાજ્યોમાં અંધારપટ છવાઈ ગયો, ત્યારે લોકોને ગુજરાતનું અજવાળું દેખાઈ ગયું. દુનિયાનું કોઈ છાપું એવું નથી, દુનિયાનું કોઈ એવું સમાચાર પત્ર નથી કે જેણે વાતનો ઉલ્લેખ ન કર્યો હોય કે આખું હિન્દુસ્તાન જ્યારે અંધકારની લપેટમાં હતું ત્યારે એકમાત્ર ગુજરાત જગમગતું હતું. ભાઈઓ બહેનો, કહેવાનું તાત્પર્ય આ છે કે દિલ્હીમાં એવી બરબાદી થઈ રહી છે, એવી બરબાદી થઈ રહી છે કે આપણે અમથા અમથા હારા લાગવા માંડ્યા છીએ. ગઈકાલ સુધી કેટલાક લોકોની જોવાની તૈયારી નહોતી, એમને પણ મજબૂરીથી ગુજરાત તરફ જોવા માટે મજબૂર થવું પડ્યું છે. અને હવે દેશ, ગુજરાતનો સામાન્ય નાગરિક, વિશ્વના નિરીક્ષકો સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે કે એક બાજુ દિલ્હીની આવડી મોટી સરકાર અને બીજી બાજુ ગુજરાતને દરિયાકાંઠે આવેલું એક નાનકડું ગુજરાત રાજ્ય. દેશ અને ગુજરાતની તુલના થાય છે. ક્યારે હોય નહીં, કોઈ દિવસ ના હોય. આવડા મોટા દેશને વળી આપણે કઈ તુલના થાય એવું કરી શકીએ? અને ન કર્યું હોય તો કોઈ પ્રશ્ન ના પૂછે. પરંતુ જે સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે
વિકાસની દિશામાં રાજ્યને લઈ જવામાં જે યશ પ્રાપ્ત થયો છે એના કારણે આજે સહજ રીતે એક બાજુ હિન્દુસ્તાન અને એક બાજુ ગુજરાત એની ત્રાજવે તોલણી થાય છે અને ગુજરાતનું પલ્લું નમતું જાય છે. ભાઈઓ, ગુજરાતનું પલ્લું નમતું જાય છે. ભાઈઓ બહેનો, સ્વામી વિવેકાનંદનું સપનું શું હતું? દોઢસો વર્ષ પહેલા એક મહાપુરુષનો જન્મ થાય, 30-32 વર્ષની ઉંમરે તો જીવન સંકેલી લે અને દુનિયામાં જેનો દંડો ચાલતો હતો અમેરિકાની ધરતી પર ભારતની મહાનતાની સિંહગર્જના કરે. આજે 11મી સપ્ટેમ્બર દુનિયા એને 9/11 તરીકે ઓળખે છે. 9/11 દુનિયાએ 2 9/11 જોઈ છે અને હિન્દુસ્તાને ગર્વપૂર્વક આ 9/11 દુનિયાને યાદ કરવાની આવશ્યકતા છે. એક 1893 નું 9/11, 1893 ની 11મી સપ્ટેમ્બર જ્યારે ભારતનો એક તેજસ્વી નવયુવાન સંન્યાસી અમેરિકાની ધરતી પર બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર્સ ઓફ અમેરિકા એમ 2 શબ્દો બોલે છે અને મિનિટો સુધી તાલીઓના ગડગડાટ ચાલે છે. ભારતના આધ્યાત્મિક વિરાસત દ્વારા સમગ્ર વિશ્વને પોતાના બાહુપાસમાં સમાવી લેવાનું સામર્થ્ય 32 વર્ષનો તદ્દન નાની ઉંમરનો નવજવાન સંન્યાસી આખી દુનિયાને મોહિત કરી લે છે. ભાતૃત્વના શબ્દ દ્વારા, ભાઈચારાના સંદેશ દ્વારા, બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર શબ્દના ઉલ્લેખ દ્વારા વિશ્વને ભારતીય સંસ્કૃતિનો પરિચય કરાવી દે છે કે અમે જોડનારા લોકો છીએ, અમે સમાવેશ કરનારા લોકો છીએ, અમે પ્રત્યેકમાં અપરત્વ જોનારા લોકો છીએ એની અનુભૂતિ કરાવે છે. આ એક સંસ્કૃતિ અને એના 100 વર્ષ પછી દુનિયા એક બીજી વિકૃતિનો અનુભવ કરે છે. એ જ 9/11 બિન લાદેન અમેરિકા પર ભયંકર રીતે તૂટી પડે છે. અમેરિકાની આખી સિક્યુરિટી વ્યવસ્થાને છિન્ન વિચ્છિન્ન કરી નાખે છે. નિર્દોષ લોકોને મોતને ઘાટ ઉતારે છે અને લોકોને મરતા જોઈને એ પિશાચી આનંદની અનુભૂતિ કરે છે. વિશ્વએ 2 પ્રકારની વિકૃતિઓને, એક તરફની વિકૃતિ અને બીજી તરફની સંસ્કૃતિ, આ બંનેને બરાબર જોયું અને પલ્લું હિન્દુસ્તાનનું નમતું હતું. ભાઈઓ બહેનો, આજે 9/11 નો દિવસ છે. આજે 11મી સપ્ટેમ્બર છે. વિશ્વને સંદેશ આપવાનું સામર્થ્ય હિન્દુસ્તાનની ધરતીમાં છે. પણ દેશનું દુર્ભાગ્ય છે કે દેશ પાસે એવા નેતૃત્વની કમી છે કે જે વિશ્વની સામે આ ગૌરવપૂર્ણ ગાથા કહેવા માટે પણ માથું ઊંચું કરીને ઉભો રહી શકે. ભાઈઓ બહેનો, દેશ ન કરે તેથી શું ગુજરાત ચૂપ રહે? તમે નથી કરતા તો કઈ વાંધો નહીં, અમારે ચિંતા કરવા જેવી નથી એમ કરીને બેસી રહે? ભાઈઓ બહેનો, આપણને પાળવે નહીં. જેમણે જેમણે સ્વામી વિવેકાનંદને વાંચ્યા છે એ પ્રત્યેકના મનની અંદર એક ભાવ જાગવો જોઈએ કે શું આ દેશની આજની પેઢીની જવાબદારી નથી કે સ્વામી વિવેકાનંદે જે સ્વપ્ન જોયું હતું એ સ્વપ્ન પૂરું કરવું એ આપણા સૌની જવાબદારી છે કે નહીં? ખોંખારીને બોલો. સ્વામી વિવેકાનંદે જે સપનું જોયું હતું એ સપનું પૂરું કરવાની આપણી જવાબદારી છે કે નહીં? સ્વામી વિવેકાનંદે સપનું પણ જોયું હતું અને સપનું કોણ પૂરું કરશે એની પણ ચોખવટ કરી હતી. એમણે કહ્યું હતું, હું હિન્દુસ્તાનના યુવાનો પર ભરોસો કરું છું. મને વિશ્વાસ છે કે હિન્દુસ્તાનના યુવાનો એવું પરાક્રમ કરશે કે મારી ભારત માતા ફરી એકવાર વિશ્વગુરુના સ્થાન પર વિરાજિત થશે. આ સ્વામી વિવેકાનંદજીનું સપનું હતું. मीडिया ना मित्रों ने विनंती આવી છે कि बीच बीच में कुछ हिंदी में भी बोलिए. શું કરીએ ભાઈઓ?
હવે તો જનતાનો અવાજ ફાઇનલ. हिंदी. भाइयों बहनों, गुजरात की आवाज हिंदुस्तान सुनना चाहता है. यह आवाज एक इंसान की नहीं है. यह आवाज नरेंद्र मोदी नाम के किसी व्यक्ति की नहीं है. ये 6 करोड़ गुजरातियों के संकल्प की आवाज है. यह आवाज 6 करोड़ गुजरातियों की सिंह गर्जना है जो देश सुनना चाहता है. देश क्यों सुनना चाहता है? क्योंकि उसे जो चाहिए वो कोई दे नहीं पा रहा है. और जब गुजरात को मिलता है तो उसको लगता है कि गुजरात को कैसे मिला, ये हमें भी सुनने को मिले. भाइयों बहनों, क्या स्वामी विवेकानंद जी का सपना इस देश का नौजवान पूरा नहीं कर सकता है? भाइयों बहनों, पिछले 10-12 साल से मुख्यमंत्री पद पर आप लोगों ने मुझे बिठाया है. उस दायित्व को निभाते निभाते, कार्य करते करते, नौजवानों से मिलते मिलते मेरा विश्वास इतना दृढ़ हो गया है कि स्वामी विवेकानंद के सपने हमारे देश के नौजवान पूरे कर सकते हैं. उनको अवसर मिलना चाहिए, उनको मार्गदर्शन मिलना चाहिए, उन्हें प्रेरणा मिलनी चाहिए, उन्हें नेतृत्व मिलना चाहिए. अगर सही नेतृत्व मिले तो ये नौजवानों में पूरा सामर्थ्य है और गुजरात की युवा पीढ़ी ने ये करके दिखाया है. भाइयों बहनों, सरकार में पिछले 10 वर्ष में 3 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया है. 3 लाख से अधिक. ये सारे नौजवान आज सरकारी व्यवस्था में है. गुजरात की पुलिस हिंदुस्तान की सबसे नौजवान पुलिस है. इतनी छोटी आयु के पुलिस में भर्ती हुए हो, इतनी बड़ी तादाद में हुए हो, यह हिंदुस्तान में हुआ नहीं है. और आने वाले 2-4 साल में आपको देखोगे चारों तरफ हर क्षेत्र में आपको सिर्फ नौजवानों का नेतृत्व दिखेगा. ये युवा शक्ति को हमने जोड़ा है. क्यों? स्वामी विवेकानंद के उस सपने को साकार करने के लिए कम से कम गुजरात अपनी भूमिका को अदा करे. गुजरात भारत को समृद्ध बनाने का उसके ऊपर जितना हिस्से की जिम्मेवारी है, उस हिस्से की जिम्मेवारी को भली भांति पूरा करे ताकि स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार कर सके. भाइयों बहनों, आज हम बहुचराजी में बैठे हैं. हिंदुस्तान भर के मीडिया के लोग भी आज यहां मौजूद है. आप देख लीजिए आज ये बहुचराजी कैसा छोटा सा गांव है. एक तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ यात्री यहां आ रहे हैं. लेकिन आने वाले दिनों में हमने उसको एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित करने का सपना देखा. આજે જેવું અમદાવાદ ધમધમે છે ને, એનાથી પણ વધારે બહુચરાજી ધમધમવાનું છે. આજે મોટા મોટા રસ્તા અમદાવાદમાં દેખાય છે, એવા મોટા મોટા રસ્તા બહુચરાજીમાં આકાર લેવાના છે. આજે મોટા મોટા બાબુઓ અમદાવાદમાં ઉતરે છે. આ મોટા મોટા બાબુઓ આવનારા દિવસોમાં બહુચરાજીની ધરતી પર ઉતરવાના છે. આજે બહુચરાજીનો માનવી પોતાને ત્યાં ગ્રાહક આવે, કંઈ ખરીદી કરી જાય, યાત્રી આવે તો કંઈ પ્રસાદ લેતો જાય, 5 રૂપિયાનો વકરો કરાવવા જાય, એના માટે બિચારો દિવસ રાત રાહ જોઈને બેઠો હોય છે. સવારે હજુ તો ભક્તો ચાલુ ના થયા હોય એ પહેલા એને આરતી પૂજા કરીને દુકાન ખોલીને બેસી ગયો હોય. આવનારા દિવસોમાં તમે જોજો આ વિસ્તારના નાગરિકનો દમ એવો હશે કે ગ્રાહકને કહેશે હમણાં મૂડ નથી, સાંજે આવજો. આ દ્રશ્ય હું જોઈ રહ્યો છું दोस्तों. ये दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है. यानी एक ऐसा विकसित इलाका गुजरात का ये बन जाएगा जिसका कभी सपना यहां के मेरे गरीब भाइयों ने देखा नहीं था. मैं आपकी आंखों में सपने देख रहा हूं और आपके सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से अपनी जिंदगी खपा रहा हूं.
नौजवान दोस्तों, ये युवा विकास यात्रा लेकर के हम इसलिए चले कि आपके मन में मैं एक सवाल पैदा करना चाहता हूं। अगर जिस प्रकार से दिल्ली चल रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की भाषा है, क्या आपका कोई भविष्य उज्जवल है? क्या आपके लिए रोजी रोटी संभव है? क्या आपके लिए शिक्षा संभव है? क्या आपके लिए आरोग्य संभव है? क्या हम मेरे देश के नौजवानों को डूबता हम देख सकते हैं? भाइयों बहनों, नहीं देख सकते हैं। और इसलिए सपनों को लेकर के जागने की जरूरत है। सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इन दिनों टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आती है, दिन में 90 बार आती है। 90 बार दिशा बदलो, दशा बदलेगी। ये दशा बदल के क्या होगा भाई? वो कौन सी दिशा थी पहले? वही दिशा जो आज दिल्ली का हुआ है। क्या हम चाहते हैं जो दुर्दशा देश की हुई वो गुजरात की होनी चाहिए? क्या उस दिशा में जाना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार से गुजरात को लिप्त करने देना चाहिए? क्या भाई भतीजेवाद से गुजरात को लिप्त करने देना चाहिए? क्या सगावाद को गुजरात में घुसने देना चाहिए? क्या दंगे फिसाद को गुजरात में फिर से आने देना चाहिए? आए दिन चाकू चलते थे वो चलने देना चाहिए? क्या वो कर्फ्यू के दिन फिर से आने देना चाहिए? भाइयों बहनों, गुजरात को दोबारा नहीं देखना है। गुजरात को शांति चाहिए, गुजरात को सुख चैन की जिंदगी चाहिए, गुजरात को प्रगति करनी है। देश का नौजवान अपने सामर्थ्य से गुजरात की भी सेवा कर रहा है और गुजरात के माध्यम से देश की भी सेवा कर रहा है। मैंने आज एक अखबार में पढ़ा, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जहां जहां जाएं, डट करके उनका विरोध करो। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है। मैं आज सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के मित्रों को प्रार्थना करता हूं, ये लोकतंत्र है, चुनाव का समय है। क्या हम इतना धैर्य खो बैठे हैं कि किसी के आवाज भी सुनने नहीं देंगे, किसी को जाने भी नहीं देंगे? क्या ये लोकतंत्र का आपका अर्थ है? क्या ये आपकी दिशा है? क्या आप ये चाहते हैं कि गुजरात में सोनिया जी आए और उनके भी विरोध हो? क्या आप ये चाहते हैं कि मनमोहन सिंह जी गुजरात में आए, उनका भी विरोध हो? ये लोकतंत्र नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों को प्रार्थना करता हूं, आप अपने कार्यक्रम के लिए जी जान से कीजिए, उसमें मेरी सरकार की जो मदद चाहिए मांगिए, मदद मैं दूंगा आपको। आप अपनी बात गुजरात की जनता के सामने रखो, भाजपा वालों को उनकी बात रखने दो, निर्णय जनता को करने दो। ये विरोध करने की भाषा चुनाव के दिनों में अच्छी नहीं है। भाइयों बहनों, गुजरात का इतिहास रहा है शांतिपूर्ण चुनाव का। गुजरात में चुनाव में खून नहीं बहता है। मैं कांग्रेस के मित्रों को प्रार्थना करता हूं कि आप इतनी गर्मी इतनी पैदा न करो कि जिसके कारण गुजरात के चुनावों को कोई दाग लग जाए। और इसलिए एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते, अब मैं नहीं मानता हूं गुजरात कांग्रेस के मित्र कुछ समझ पाएंगे, लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इसलिए शायद दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग समझ पाएं और उनके नीचे यहां जो बैठे हैं उनको समझाएं कि तरीका नहीं है। भाइयों बहनों, देश की हालत क्या है? मैं हैरान हूं। आज जो अभी अरुण जी बता रहे थे, एक तरफ हम युवकों को विवेकानंद जी की प्रेरणा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के युवकों के संबंध में दिल्ली सरकार के मंत्री के दिमाग में कितना गंदे विचार भरे पड़े हैं, वो आज के अखबार में आप पढ़ सकते हैं। हमें दिखता है कि हिंदुस्तान का युवान स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार कर ऐसा सामर्थ्यवान है। उनको दिखता है कि हिंदुस्तान का युवान अश्लील चित्र देखने में डूबा हुआ है। ये कांग्रेस के दिल्ली सरकार में बैठे हुए मंत्री की भाषा,
इस प्रकार का देश के नौजवानों का अपमान। आज भी मित्रों मैं कहता हूं, मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूं जिनके हाथ में सिगरेट हो, जींस का पैंट हो, लंबे बाल हो, लेकिन कहीं पर विवेकानंद जी की मूर्ति देखता है तो आज भी वो नतमस्तक हो जाता है। मैं आज भी गुजरात हिंदुस्तान के नौजवानों को देखता हूं कि कितनी आदतें क्यों न बिगड़ी हो, लेकिन अगर भगत सिंह का चित्र कहीं देखता है तो उसका सीना फूल जाता है। ये मेरे देश के नौजवानों के सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता है, लेकिन उसको कोसते रहना, उसको गाली गलौज करना, क्या उस तरीके से देश बढ़ेगा? भाइयों बहनों, कांग्रेस के पास कितने पैसे हैं, मैं हैरान हूं। हम सरकार में है तो भी दिन में 90 बार टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देने के लिए मेरी हिम्मत नहीं है। इतने पैसे लाएंगे कहां से? कांग्रेस पार्टी अपने पैसों से ये खर्चा कर रही है। तो मैंने हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र काका को कहा, भाई ये लड़ाई कैसे लड़ोगे? बोले मोदी जी आप नहीं लड़ सकते ऐसी लड़ाई, आप कभी 2G कर नहीं सकते, आप कभी 2G का सोच नहीं सकते, आप कभी कोयले में हाथ काला कर नहीं सकते। उनको 90 बार की नहीं 200 बार करने दीजिए। गुजरात की जनता को समझ आता है कि ये दिशा है उनकी। भ्रष्टाचार के पैसों से आपको गुमराह करने की उनकी दिशा है। और हमने एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट दी, छोटी सी, है कैसी लगी? जम गई ना? हमने एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट दी, गुजरात को अन्याय हो रहा है और चाटा मारा। दिल्ली कैसा चाटा मारता है ये देश को दिखाया। साहब थप्पड़ तो टीवी पे लग रही है, चक्कर कांग्रेस को आ रहे हैं। थप्पड़ तो टीवी में मारने वाला मारता है, खाने वाला खाता है, पूरी कांग्रेस बेहोश हो गई है। और क्या किया कांग्रेस ने? देखिए लोकतंत्र के प्रति अनास्था देखिए। वो तो जो मर्जी पड़े बोल रहे हैं, 1.5 साल से बोल रहे हैं, कोई ऐसी गाली नहीं है जो उन्होंने बोलनी बाकी रखी है। उसके बाद भी हम झेल रहे हैं, सहन कर रहे हैं। हमने एक एडवर्टाइजमेंट दी, वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाकर के प्रार्थना की है उन्होंने कि ये मोदी सरकार ने जो एडवर्टाइजमेंट दी है उस पर रोक लगाओ। मेरे कांग्रेस के मित्रों, इसके लिए कोर्ट का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? आ जाओ ना, बैठ ले, अपन बात कर लें। आपने हमारा 32% केरोसिन कम कर दिया है, वो 32% की कटौती भर दो, हम थप्पड़ को गायब कर देंगे। हम कहते हैं हमको वही गैस मिलना चाहिए जिस दाम से दिल्ली को मिलता है, हमारी थप्पड़ चली जाएगी, दे दो। नहीं दे रहा है। अन्याय दूर करने के लिए तैयारी नहीं है, सिर्फ कोर्ट कचहरी के माध्यम से हमें परेशान करने के लिए रास्ते खोजे जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी अरुण जी बता रहे थे किस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। मैं आप सबको भी कहता हूं भाइयों, गुजरात में अकेली कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने वाली। अकेली कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाएगी, कांग्रेस और सीबीआई मिलकर के लड़ने वाले। भाइयों बहनों, मैं प्रधानमंत्री को, अगर वो नेक और साफ दिल के हैं, तो मैं कांग्रेस से आह्वान करता हूं, आप सीबीआई का दुरुपयोग करते चले जा रहे हो। पूरा हिंदुस्तान कोयले की दलाली में करीब करीब 2 लाख करोड़ की गफले के संबंध में परेशान है। इस समय की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में एसआईटी बने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बने और वो प्रधानमंत्री के कारोबार की जांच करे और देश के सामने लाए, ये मैं मांग करता हूं। गुजरात में तो आए दिन एसआईटी बना देते हो। मोदी को घेरने के लिए रोज नहीं एसआईटी का जन्म होता है। प्रधानमंत्री एक बार तो एक एसआईटी को जेल लो, देखे किसमें कितना दम है। आइए हो जाए मुकाबला, लेकिन वो दम नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों को आह्वान करता हूं, दिल्ली की सल्तनत को आह्वान करता हूं,
आइए, गुजरात ने विकास का रास्ता अपनाया है, आइए विकास की स्पर्धा करें। झूठ बोलने की स्पर्धा में मैं आना नहीं चाहता हूं, मुझे वो रास्ता मंजूर नहीं है। गंदे आरोप लगाने के रास्ते पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, वो रास्ता हमें मंजूर नहीं है। हमारा मार्ग है स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने का। हमारा रास्ता है गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। हमारा रास्ता है नौजवानों को सम्मानपूर्वक जीने का अवसर देने का। हमारा रास्ता है भारत के भाग्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों को कौशल्य दिया जाए, अवसर दिया जाए। दिल्ली के पास ऐसी कोई खबर आती नहीं है। कभी प्रधानमंत्री के मुंह से सुना कि मैं ये करना चाहता हूं? नहीं सुना। 7 साल हो गए भाइयों। अगर इसी प्रकार से देश चलता रहा तो तबाही कहां पहुंचेगी। और इसलिए नौजवानों को जागने की जरूरत है। और मैं तो प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से सलाह देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपको अगर दिशा नहीं सूझती हो, किस दिशा में जाना इसका आपको कुछ रास्ता न मिलता हो, आंख बंद करके गुजरात की दिशा पकड़ लो, देश की दशा बदल जाएगी। आंख बंद करके आ जाइए, यही सच्चा रास्ता है जो आम आदमी की भलाई करेगा। भाइयों बहनों, मैं 11 अक्टूबर तक जनता जनार्दन के बीच जाने वाला हूं, जनता से संवाद करने वाला हूं। और मैं गुजरात के आने वाली कल में मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरे नौजवान, मेरा आदिवासी भाई, मेरे दलित भाई बहन किस प्रकार से उनकी शक्ति काम में आए, उसके लिए एक आह्वान करने के लिए निकल पड़ा हूं। मुझे अभी और कुछ अच्छा करना है। लोग कहते हैं मोदी जी गुजरात तो बहुत आगे बढ़ गया, कहते हैं ना। તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં ગુજરાતની વાહવાહી સાંભળવા મળે છે ને। આ વિકાસ થયો છે એ તમને દેખાય છે ને। ગુજરાતમાં પરિવર્તન આવ્યું છે તમને દેખાય છે ને। નર્મદાના પાણી પહોંચાય તમને દેખાય છે ને। રસ્તા સારા બનવા માંડે દેખાય છે ને। ગામો ગામ શાળા કોલેજો શરૂ થઈ દેખાય છે ને। તમને દેખાય છે, કોંગ્રેસ વાળા નથી દેખાતું। જે સામાન્ય માનવીને દેખાય છે એને જોવા માટેની કોંગ્રેસની તૈયારી નથી। भाइयों बहनों, अभी दिल्ली ने एक नया तौर तरीका अपनाया है। कहीं वो फंस जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को ही कटघरे में डाल देते हैं। जब 2G के मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कठोरता बरतनी शुरू की, खुलेआम कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने की हिम्मत दिखाई। ये देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। एक तरफ तो भारत के संविधान के गुण गाना और दूसरी तरफ अगर 2G के स्कैम में अगर सुप्रीम कोर्ट सक्रिय होती है तो उसी को कटघरे में खड़े देखने वाले, आशंकाएं पैदा करने वाले बयान देना उन्होंने शुरू किया। कभी मीडिया के अंदर स्कैम उछल जाते हैं तो खुलेआम कहते हैं कि 2-4 मीडिया वाले पीछे पड़ गए, वो हिंदुस्तान की आवाज नहीं है, ऐसा कहते हैं। और अभी जब सीएजी ने कह दिया तो इन दिनों सीएजी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उसकी विश्वसनीयता पर सवाल या निशान लगाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उनके साथियों ने किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी का यही तरीका हो जाता था, जो भी उनके साथ न चले उसके प्रति पूरे देश में एक विरोध का माहौल बना दो, उसको अपने रास्ते से चलित होने के लिए मजबूर कर दो। ये श्रीमती इंदिरा गांधी आपातकाल के जमाने में करती थी। आज मनमोहन सिंह जी की सरकार और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह यही कर रही है। भाइयों बहनों, मैं एक मुद्दे को लेकर के लड़ाई कभी छोड़ने वाला नहीं हूं और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए है। लेकिन मुद्दा तो पूछा ही नहीं आपने। मैं एक ही मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ लड़ता रहूंगा और वो है गुजरात के प्रति अन्याय। जिस प्रकार से गुजरात को दिन रात जैसे भिखारी राज्य है इस प्रकार का बर्ताव हो रहा है, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। हम 6 करोड़ गुजराती
किसी की कृपा पर जीने वाले लोग नहीं हैं। हम मेहनत करके, पसीना बहाने करके, खेत में फसल पैदा करके जी जान से जुटने वाले लोग हैं। और हमें आए दिन ये कहना, ये हमने दिया, हमने भी दिया। गुजरात को भिखारी बताने वालों को गुजरात इस बार जवाब दे देगा कि भिखारी कौन है, वो दिखा करके रहने वाला है। भाइयों बहनों, आज स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं तब, और युवा विकास यात्रा को लेकर के मैं चला हूं तब, और आज गुजरात ने संकल्प पूरा किया है गुटखा मुक्त गुजरात। मुझे इतनी माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले हैं, गुटखा मुक्त गुजरात। तो आज एक और भी शपथ ले लो, जैसे गुटखा मुक्त गुजरात से कैंसर हटता है, वैसे कांग्रेस मुक्त गुजरात का भी सपना ले लो। गुटखा मुक्त गुजरात भी चाहिए और कांग्रेस से मुक्त गुजरात भी चाहिए, वरना ये कैंसर से समाज कहीं न कहीं पीड़ित होता रहेगा। उस समाज को बचाना है। भाइयों बहनों, आज बहुचराजी जी की पवित्र धरती पर खड़े हैं। आने वाला समृद्ध गुजरात जिस धरती पर जन्म लेने वाला है, उस पवित्र भूमि पर खड़े हुए हैं। तब विकास की नई मंजिलें जहां से शुरू होने वाली है, वहां खड़े हैं। तब आप सब मेरे साथ एक संकल्प दोहराएंगे, और संकल्प दोहराते समय बैठे बैठे, खड़े खड़े सब लोग अपने हाथ ऊपर अपने इष्ट देवता की तरफ करके ऐसे हाथ जोड़ेंगे। सब लोग जोड़िए, और जो मैं बोलता हूं आप सब बोलिए। बधाना हाथ ऊपर जोड़ेला होय, बधाना हाथ ऊपर जोड़ेला होय। हमें गुजरात में रहनारा भारत माताना युवान पुत्रो अने कन्याओ निष्ठा अने प्रामाणिकताथी स्वामी विवेकानंदजीनी 150મી જન્મ જયંતિના વર્ષમાં આજે સંકલ્પ કરીએ છીએ કે અમારા દેશવાસીઓની ખુશાલી અને ભારતની ચારે દિશામાં પ્રગતિ થાય એ માટે निरंतर कार्य करता रहीशु। हमें शिक्षण ने रोजगार लक्षी बनावीशु। परंतु हमें मात्र नौकरी मांगनारा नहीं, नौकरी आपनारा उद्यमशील युवा साहसी को बनीशु। हमें हमारा जीवनना विकास साथे समाज में ज्યાં अज्ञान अभाव અને અસમર્થતાના વાતાવરણમાં જે વર્ગો જીવન ગુજારે છે તે તમામ વર્ગો અને વંચિતોના વિકાસ માટે પૂરતો પ્રયત્ન કરીશું। અમે એવી સ્થિતિનું નિર્માણ કરવા પ્રતિબદ્ધ રહીશું જેમાં जाति संप्रदाय के अन्य कोई पण प्रकारना भेदभाव के विभिन्नता ने कारणे कोई पण विकास थी वंचित ना रहे। गुजरातनी प्रगतिना मार्गे चालीने हमें विकसित भारतना सपना साकार करवानो पूरो प्रयत्न करीशु। हमें हमारी जातने भ्रष्टाचार थी दूर राखीशु। हमें सामाजिक समरसता राष्ट्रीय एकता અને અંત્યોદય માટે
અમારા ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે અમારા ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી કાર્યરત રહીશું. કાર્યરત રહીશું. ભારત માતા કી જય. ભારત માતા કી જય. ભારત માતા કી જય.